Good morning, students. Today we start chapter number 3, exponents and radical. You have already studied about exponents in class 6th and 7th. Now we will continue this chapter with new term radicals. Clear? Now we will discuss some basic concept of exponents. For any non-zero rational number a to the power 0 is equal to 1. ये आपको पता ही है बेटा, हमने किया था ना ये कि any number whose power is 0 is always equal to 1. But keep this thing in mind, a should not be equal to 0. a 0 नहीं होना चाहिए for any non-zero. बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि 0 to the power 0 क्या होता है बेटा, this is not defined number. 0 to the power 0 cannot be written as 1. तो ये बात ध्यान रखना कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता. 0 to the power 0 is not defined. क्लियर? ये हम आपको 9th क्लास में बताएंगे क्यों ये नॉट डिफाइंड होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज a to the power minus n is equal to a1 upon a to the power n. इसको हम रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं इसको. अब जैसे कोई भी पावर मान लो 2 to the power minus 3 है, 2 to the power minus 3, it can be written as 1 upon 2 to the power 3. जब इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसका जो माइनस साइन वो चेंज हो जाएगा. क्लियर? नाउ देयर आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ये भी आप जो है 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. ये भी a नॉन जीरो होना चाहिए. a to the power m into a to the power n when base is same. You can see here base are same and they are multiplying, then their power will be added. अगर बेस सेम है और वो दोनों आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है. ये अभी आपने पढ़ा, जैसे हम ये ले लेते हैं 2 to the power 3 into 2 to the power 5. बेस दोनों का 2 है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. 2 to the power 3 plus 5, 2 to the power 8. लेकिन अगर बेस डिफरेंट है, यहाँ 2 to the power 3 ले लिया मैंने और 5 to the power 2 ले लिया, बेस डिफरेंट है तो आप इनकी पावर को ऐड नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? तो ये ध्यान रखना आपने. पावर विल बी एडेड ओनली व्हेन द बेसिस आर सेम. व्हेन बेसिस आर सेम देन यू कैन ऐड द पावर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज a to the power m to the power n is equal to a to the power mn और a to the power n to the power m a to the power mn. क्या मतलब उसका, जैसे कि हम ये लिख लें 3 to the power 2 और उसकी पावर बाहर है मान लो 4, तो आप पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी. 4 to जा 8, 3 to the power 8 हो जाएगा. और यूं भी ये पावर एक्सचेंज भी हो सकती है. 4 को यहाँ ला सकते हैं, 2 को यहाँ ला सकते हैं. 3 to the power 4 to the power, तब भी वही आंसर रहेगा 4 to जा 8. तो ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का. क्लियर? अच्छा, एक ये रह गई थी बेटा कि a to the power m upon a to the power n. क्लियर? a to the power m upon a to the power n. a to the power m upon a to the power n. अभी बेस सेम है, अगर अपॉन में ये इससे डिवाइड हो रहा हो तो हम इसको लिखेंगे a to the power m minus n. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a to the power m divided by a to the power n. Both have the same meaning. a to the power m upon a to the power n. a to the power m divided by a to the power n when bases are same and both one number is divided by another number, then their power will be subtracted. This will become a to the power m minus n. ये बन जाएगा. मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती पावर, जबकि डिवाइड में ये a to the power m को हम डिवाइड कर रहे हैं a to the power n से, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. क्लियर? और ये वाली मैंने आपको बताई. अब ये जैसे a to the power b a into b to the power n, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं a to the power n b to the power n. जैसे सपोज कर लीजिए आप, हमें लिख दिया x into y to the power 3, तो दिस कैन बी रिटन एज x to the power 3 into y to the power 3. ओके, जैसा हमने लिख दिया 2 into 5 to the power 4.
तो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 into 5 to the power 4. क्लियर? इसी तरह बेटा ये a upon b to the power n, a upon b to the power n, इसको हम इस पावर को सेपरेट कर सकते हैं, इस पावर को a के साथ भी लगा सकते हैं और b के साथ भी लगा सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज a to the power n upon b to the power n. जैसे हमने लिया 2 upon 3 to the power 3. This can be written as 2 to the power 3 upon 3 to the power 3. This power can be applied both numerator and denominator. Clear? Now we will start our new concept that is included in 8th class. That is, if a be any positive rational number, a is any positive rational number, it should be positive. This is very important. This should be positive, and m be an integer while n be a natural number. This is very, very important. This m should be integer and n is a natural number. N is a natural number. Clear? Means this denominator cannot be negative. N is a natural number. N is a natural number. And m can be negative, m can be positive. M is an integer. Clear? Then this a is equal to a to the power m upon n can be written as a to the power n, and this आपने जैसे स्क्वायर रूट का निशान लगाते हैं, आप n लिख दें, n लिख देना. क्लियर? तो अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं अभी इसको ध्यान समझाता हूँ. ये जो a टू दी पावर m है, इसको तो हम बोलेंगे रेडिकेंड. a टू दी पावर m को क्या बोलेंगे? रेडिकेंड. और इस पूरे को बोलेंगे हम रेडिकल. इसको क्या बोलेंगे? रेडिकल. तो मैं दोबारा इसको ढंग से समझाता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आया होगा. जैसे मैं लिख देता हूँ 5 टू दी पावर 2 अपॉन 3. दिस इज द एक्सपोनेंशियल. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये क्या आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब इसको मैंने क्या करना है, यहां पर रूट के अंदर 5, ये जो न्यूमरेटर में है ये इसकी पावर हो जाएगी 5 टू दी पावर 2, और जो डिनोमिनेटर में है वो यहां आएगा रूट के बाहर. तो छोटा सा लिखना है आपने 3. अब आपको थोड़ा समझ आया होगा कि जो ये एक्सपोनेंट है 5 टू दी पावर 2 अपॉन 3 है, इसमें जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो तो आएगा बाहर, और जो नंबर न्यूमरेटर में है वो इस नंबर की पावर बन जाएगा. थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं. जैसे मैंने बोला 6 टू दी पावर -4 अपॉन 7 -4 अपॉन 7. क्लियर? तो अब इसको माइनस लिखते हुए पॉजिटिव बताते हैं आपको. तो पॉजिटिव ये किस कर सकते हैं 4 अपॉन 7. तो क्या होगा, रूट तो लगाना ही है आपने, एंड 6 टू दी पावर जो नंबर न्यूमरेटर में क्या है 4, वो यहां, और जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो कहां लिखना है? बाहर. क्लियर? तो हम इस पूरे को बोलते हैं रेडिकल. इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज रेडिकल फॉर्म. और जो 6 टू दी पावर 4 है इसको हम बोलेंगे रेडिकेंड. दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड. क्लियर? अब मैं आपको नेगेटिव भी लेके दिखा देता हूं. नेगेटिव अगर आपने नेगेटिव लेनी हो, सपोज मैं ले लूं 6 टू दी पावर -2 अपॉन 3. 6 टू दी पावर -2 अपॉन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 6, और 6 टू दी पावर क्या लिखेंगे हम? न्यूमरेटर में क्या है? -2. और जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो हम कहां लिख देंगे? रूट के बाहर. यहां पर ये बात आपने ध्यान रखनी कि ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, वाइल एन इज ए नेचुरल नंबर. ये डिनोमिनेटर वाला नंबर हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा. हाँ, न्यूमरेटर इंटीजर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है.
तो ये पूरे इसको हम बोलेंगे रेडिकल, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। एंड दिस 6 to the power minus 2 is called रेडिकेंट, रेडिकेंट। अब आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया, क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 is express each of the following in exponential form. We have to convert this into exponential form. This is radical form. These all are radical form. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें बेटा, उसका उल्टा है, ये 35 और ये 5 है, इसको हम क्या लिखें 35 to the power 1/5। मैंने आपको पहले बताया था अगर यहाँ पर कोई नंबर ना हो तो उसका मतलब समझ लो यहाँ 1 है। तो हमने क्या बताया था बेटा कि ये जो चीज आती है ये वाली चीज कहाँ होती है, न्यूमरेटर में, वो वाली चीज कहाँ होती है, डिनोमिनेटर में। ऐसे यहाँ पर 27 टू दी पावर, ये चीज कहाँ आएगी, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, 2/11। इस तरह 11/3 टू दी पावर। अब बेटा यहाँ पर कोई पावर नहीं है, समझ लो 11/3 की पावर क्या है, 1 है समझ लो। तो ये 1 कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, और 7 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। इस तरीके से बेटा ये देखो 15/341, ये नंबर कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, और ये कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, -3/7। तो इस तरीके से आपने इसके बाकी बच्चे पार्ट भी करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेडिकल्स। अब इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो मैंने आपको बताया अभी बताया था कि 21 पहले हमने क्या निकालना है, रूट। अब ये जो न्यूमरेटर में है ये अंदर 21 की 1 की पावर 1, और जो डिनोमिनेटर में है वो रूट से बाहर। ऐसे 25 टू दी पावर 3/4, 25 जो न्यूमरेटर में है वो यहाँ और डिनोमिनेटर में है वो यहाँ। इस तरह बेटा ये 17/231 रूट, तो इसकी जो पावर है वो जो न्यूमरेटर है बेटा वो कहाँ पे आएगा, वो अंदर टू दी पावर -5, और जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म, क्लियर। तो बेटा ये आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा कि आपके जो एग्जाम होना है वो MCQ टाइप भी है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी। आपका 25 मार्क्स का जो है वो पेपर होना है, और आपको 25 मिनट्स ही उसमें दिए गए हैं, और उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है वो है MCQ, 5 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और 5 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स या जो भी है आपका शॉर्ट आंसर टाइप, इस टाइप से हो सकते हैं। और आपने उनको 1 वर्ड में ही आंसर देना है। आप रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आंसर हमेशा 1 वर्ड में ही आपने देना है। और जितना आपको पढ़ाया गया छुट्टियों से पहले वही आएगा, ये नहीं आएगा। छुट्टियों से पहले जितना भी हमने सिर्फ आपको पढ़ाया है उसी से आपका एग्जाम में आना है, तो उसी तरीके से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। थैंक यू।